فوج کی LOC پر بلا اشتعال انگیزیاں جاری اور بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور بیدوری سیکٹر پر شہری آبادی پر فائرنگ 13 سالہ لڑکی شہید جبکہ اس کی ماں اور بھائی شدید زخمی ہو گئے پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کارروائی پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں 2020 کا پہلا سورج گرہن جاری محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن 2:34 تک جاری رہے گا گرہن کے دوران سورج کو دیکھنے سے گریز کریں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے سے بینائی سے بھی محروم ہو سکتے ہیں ماہرین امراض چشم ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریہ کے محترم مفتی نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی وزیر اعظم عمران خان کا ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,951 افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد 1,76,617 تک جا پہنچی مزید 119 افراد جان کی بازی ہار گئے مجموعی طور پر 3,501 اموات 67,892 صحت یاب دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 89,13,000 سے تجاوز کر گئی 4,66,000 سے زائد اموات 47,37,000 سے زیادہ صحت یاب امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,30,000 سے زیادہ ہو گئی 1,22,000 کے قریب جان کی بازی ہار گئے لندن کے قصبے ریڈنگ کے ایک پارک میں چاقو بردار شخص کے حملے سے 3 افراد ہلاک متعدد زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں 2 کی حالت تشویشناک ہے پولیس نے جائے وقوع سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا حکومت پاکستان کے فیصلے کے پیش نظر PIA کی چارٹر فلائٹ امریکہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو 27 جون کو ملک واپس لائے گی پرواز نیو آرک لبرٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو جرسی سے لاہور کے لیے اڑان بھرے گی پاکستان ایمبیسی کے مطابق باقی رہ جانے والے پاکستانی بھی فوری طور پر خود کو رجسٹر کروائیں ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال آنے والے دنوں میں ایران اور عمان سے ٹڈی دل کے نئے حملے کا خدشہ تلفی کے لیے استعداد کار بڑھا رہے ہیں سید فخر امام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی سری نگر اور بارامولہ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری بھارتی فوج کا سری نگر کے علاقوں گلی قدر جونی مرکہ محاصرہ اور گھر گھر تلاشی کی کارروائیاں تمام داخلی اور خارجی راستے سیل دونوں اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد خاندان کے لیے والد کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے آج 21 جون ہے دنیا بھر میں سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات آج کے بعد دن کا دورانیہ بتدریج کم اور راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی جبکہ 22 دسمبر کو سال کا مختصر ترین دن اور طویل ترین رات ہوتی ہے
गोल्स से मात दे दी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं समीना राना और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। भारतीय फौज के एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर हाजी पीर और बेदोरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता रात फायरिंग से शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 13 साला लड़की इकरा शबीर शहीद जबकि उनकी मां और 12 साला लड़का शदीद जख्मी हुआ। पाक फौज ने भारतीय फौज की फायरिंग का मुअस्सर जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज 2020 का पहला सूरज ग्रहण है और जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण सुबह 8:46 पर शुरू हुआ, जो कि 2:34 तक जारी रहेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक से देखा जा सकेगा। ये ग्रहण कुछ इलाकों में गोल दायरे की सूरत में रोशन दिखाई दे रहा है और सूरज का जमीन से औसत फासला 15,17,50,000 किलोमीटर है, जबकि चांद का सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है। अगरचे सूरज चांद के मुकाबले में बहुत बड़ा है, मगर सूरज के ज्यादा फासले और चांद के कम फासले की वजह से हमारे आसमान पर दोनों का साइज लगभग बराबर ही दिखाई देता है। जब चांद जमीन से करीब तरीन हो तो ये सूरज से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप लेता है। अलबत्ता जब चांद का जमीन से फासला तकरीबन औसत या इससे ज्यादा हो तो सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज से छोटा दिखाई देने की वजह से सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप नहीं सकता और सूरज चांद के किनारों से छलकता हुआ नजर आता है, जिससे रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में सूरज ग्रहण सबसे तवील होगा और वो बताया जा रहा है कि सखर से इस नज़ारे को देखा जा सकेगा, जहां पर सूरज एक रिंग की शक्ल में नजर आएगा, रिंग ऑफ फायर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और माहिरीन का ये भी कहना है कि सूरज ग्रहण के वक्त हरगिज घरों से बाहर मत निकलें और ग्रहण के दौरान सूरज को देखने की हरगिज कोशिश ना करें। चश्मा लगाकर या फिर किसी और चीज के जरिए भी सूरज की तरफ बिल्कुल ना देखिए। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण देखने वालों की आंखों के पर्दे पर असर आ सकता है और पर्दे के मरकजी हिस्से जल सकते हैं या फिर इसके अलावा बिनाई भी जा सकती है, जो नाकाबिल इलाज है। सूरज ग्रहण के दौरान सेल्फी लेने की कोशिश भी नुकसानदेह हो सकती है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट हमारे साथ हैं। तारिक भट्ट, सूरज ग्रहण इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण का मुकम्मल दौरानिया और इसके असरात के बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, जो ये सूरज ग्रहण है, ये इस 6 माह में ये हमारा सेकंड सूरज ग्रहण है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखुसूस जो गवाद जी हसन तारिक भट्ट से हम एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जानेंगे। और कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि 11:40 पर नुक्ता उरूज होगा सूरज ग्रहण का। और दूसरी जानिब ट्वीट भी किया गया वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से, और उन्होंने ये बताया है अपने ट्विटर पैगाम में कि इस साल 6 ग्रहण होने हैं, जिनमें 4 चांद ग्रहण हैं और 2 सूरज ग्रहण हैं। और इस साल का जो दूसरा ग्रहण है वो 14 दिसंबर को होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। इसी पर बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, सूरज ग्रहण का मुकम्मल दौरानिया कब तक मुकम्मल होगा और इसके असरात से मुतालिक भी हम जानना चाहेंगे। और थोड़ा सा ये वाज़ेह कीजिएगा कि इस दौरान क्या एहतियात बरतनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। देखें, दौरानिया इसका 3 घंटे 3.5 घंटे पर, कहीं 3.25 घंटे कहीं 3.5 घंटे है कराची के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। कराची में जैसे हम बात करें कराची की, तो सुबह 9:26 पर शुरू हुआ था और 10:59 पर मैक्सिमम था इसका, यानी उस वक्त मैक्सिमम हिस्सा
सूरज का चांद ने कवर कर लिया था और रोशनी आपके पास कम पहुंच रही थी। परसेंटेज वाइज हम बात करें तो कराची में थी ये 91.5%, यानी कोई 92-93% उसका जो सन की रोशनी थी वो सूरज उसने चांद ने ब्लॉक कर ली थी और आपके पास जमीन पर सिर्फ 7 से 8% रोशनी पहुंच रही थी। सबसे ज्यादा जो था ये सक्खर में था। इसका जो वाकई में एनुलर एक्लिप्स, जिसे एनुलर एक्लिप्स कहते हैं कि एनएस यानी उसकी सन की जो सेंट्रल पोर्शन है वो सारा उसने चांद ने कवर कर लिया था और बिल्कुल उसकी आउटर जो पेरिफेरी है वो ग्लो करती हुई नजर आई थी। उस दायरे का बाहर वाला हिस्सा जो कि आपको रिंग की शक्ल में नजर आ रहा, सक्खर में नजर आया होगा और इसीलिए उसको रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया जाता है। तो उसका भी दौरानिया वही वैसे तो 12:54 तक जाएगा ये, लेकिन जो मैक्सिमम था वो 11:07 पे था। गवादर पे 10:48 पे था ये, और कराची में जैसे मैंने आपको बताया कि 10:59 पे था। आपके इस्लामाबाद में ये 11:25 पे था इसका मैक्सिमम, और ये 1:06 तक वहाँ रहेगा, और लाहौर में 1:10 तक, और कराची में 12:46 पर, पेशावर में 1:02 पर, और सक्खर में 12:54 तक, और गवादर में 12:32 तक, और इस तरह की टाइमिंग है मुख्तलिफ पाकिस्तान में। जी ठीक है। सरदार साहब ये भी बताइएगा क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लोगों को इख्तियार करनी चाहिए सूरज ग्रहण के वक्त? जी देखें, इसमें मैं इतना माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन जो माहिरीन है, डॉक्टर्स हैं जैसे और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो ये बताते हैं कि बिल्कुल नेकेड आई से आपको उसकी सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए, और किसी किस्म के ग्लासेस पहन के भी नहीं देखना चाहिए, वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आपको, अनलेस के बाइनोकुलर से आप दूरबीन से देखें, जैसे कि यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी ने यहाँ एहतमाम किया था दिखाने का, उसमें कोई हर्ज नहीं है देखने की दूरबीन के थ्रू, और अगर कोई प्रोटेक्टिव किस्म के ग्लासेस हों या सूरज की तरफ आप पुष्ट करके खड़े हैं और सामने उसका अक्स किसी उस पर देखें, कोई पेपर वेपर लगा के पिन होल करके एक शीट फिर उसके पीछे दूसरी शीट, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन बराह रास्त नहीं देखना चाहिए, वो आपकी आंख को और बीनाई को मुतासिर कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और सूरज ग्रहण के हवाले से वो बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि सूरज को बराह रास्त ना देखा जाए और जो शम्सी फिल्टर्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें कि आप बाहर ना निकलें, और खासतौर पर बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त ना दें ताकि वो बराह रास्त सूरज को ना देख सकें। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, मुफ्ती सदीकुल हसनैन सियालवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सर ये एक कुदरती अमल है, इस्लाम में इस बारे में क्या तालीमात मिलती हैं, और थोड़ा सा ये वाज़ेह कीजिएगा कि मजहबी हवाले से क्या रेफरेंसेस इसमें मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फुरकान हमीद से अगर सूरज ग्रहण के बारे में रहनुमाई ली जाए तो कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चांद मालूम और मुकर्ररा हिसाबात के मुताबिक हैं। और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रजू करें, जैसा कि आज आप जानते हैं कि ये तवहमात बहुत ज्यादा फैल चुके हैं किसी की मौत की वजह से, या बहुत बड़ा जुल्म होता है, जैसे कि अरब में भी ये बात मशहूर थी कि जब बहुत बड़ा जुल्म हो जमीन पर तो तब ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वहम करार दिया। और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद को किसी की मौत और जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ा करो। इसके अलावा भी हदीस पाक में सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त तौबा व इस्तगफार करने का वक्त है, अपनी कब्र के अजाब से पनाह मांगने का ये वक्त है। जो आमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, नमाज अदा की, दुआ की, और लंबे सजदे, लंबे रकू और लंबे क़याम के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म है। जी ठीक है। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इबादत की जानी चाहिए, दुआएं की जानी चाहिए, कोई खास इबादत अगर आप बताना चाहें सूरज ग्रहण के हवाले से, जिस तरह से आपने तोहमात का भी जिक्र किया, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दकियानुसी जो बातें हैं, रिवायतें हैं, वो चाहे वो चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, उससे जोड़ी जाती हैं, तो क्या खास इबादत जो है वो मुसलमानों को क्या वज़ाइफ हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सूरज ग्रहण जब होता है तो अल्लाह का जिक्र करना,
تکبیر پڑھنا اور اسی طرح جو ہے وہ دعا و استغفار کرنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا، یعنی ہر حال میں بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد میں مستغرق رکھے کہ خالق کائنات کے عذاب سے پناہ مانگے اور رب کائنات سے دعا مانگے کہ خالق کائنات اس کائنات کے نظام کو اعتدال کے مطابق کیسے چلتا ہے صحیح کرم فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ افسوسناک خبر ہے کہ معروف عالم دین مفتی محمد نعیم صاحب اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اور یقیناً ان کی کمی کو محسوس کیا جائے گا، لیکن جو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ یہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ہو گیا، بے شک کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ پورے عالم کی موت ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے تمام منازل کو آسان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے کہ بے شک آپ کا چلے جانا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ ایک عالم جب اٹھتا ہے، بے شک جب وہ موجود تھے آپ جانتے ہیں کہ ہم ان سے بہت زیادہ رہنمائی حاصل کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم قدم قدم پر ان کی کمی کو محسوس کریں گے، کیونکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ ایک عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سمجھ دو کہ یہ پورے عالم کی موت ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے اپنی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صدیق حسنین سالوی صاحب، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ جامعہ بنوریہ کے محتمم اور معروف عالم دین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یقیناً اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو علوم اسلامی کے فروغ کے لیے آپ کی خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، جامعہ بنوریہ کے محتمم اور معروف عالم دین مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ مفتی محمد نعیم گزشتہ روز کراچی میں رضا الہی سے انتقال کر گئے تھے۔ ترجمان جامعہ بنوریہ کے مطابق وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، تاہم اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ مفتی نعیم 1955 میں پیدا ہوئے، ان کی عمر 65 برس تھی۔ مفتی نعیم جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی کے بانی تھے، انہوں نے دینی تعلیم کے لیے انتہائی کم وسائل سے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مفتی نعیم کے علم و دانش کے باعث آج اس مدرسے کا شمار جدید مذہبی اور دنیا کے ایک بڑے مادر علمی میں کیا جاتا ہے۔ علوم اسلامی کے فروغ کے لیے آپ کی خدمات تادیر یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کی اس درسگاہ سے ملک اور بیرون ملک ہزاروں طالب علم مستفید ہوئے ہیں اور اس درسگاہ کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مفتی محمد نعیم بے شمار مواقع پر فقہ سمیت دنیاوی امور پر بھی گاہے بگاہے عوام کی سرپرستی کرتے رہے ہیں اور وہ متعدد اخبارات میں سیرت کے عنوانات کے ساتھ ساتھ اسلامی اور معاشرتی مسائل پر اپنا قلم استعمال کرتے رہے ہیں، جبکہ قومی سطح پر متعدد مواقعوں پر انہوں نے افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرنے کی تجویز دی ہے۔ مفتی صاحب متعدد کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث اور تفسیر قرآن کے علوم میں بھی انتہائی معتبر مقام رکھتے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت وفاقی وزراء اور سیاسی شخصیات نے ممتاز عالم دین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار اور مرحوم کی بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مفتی محمد نعیم کی خدمات پر خراج عقیدت اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں مزید 4,951 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 119 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,76,617 جبکہ 3,501 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 65,739 ہے، سندھ میں 67,353، اسلام آباد میں 10,622، بلوچستان میں 9,328 اور خیبر پختونخوا
पख्तूनख्वा में 21,444, गिलगित बल्तिस्तान में 1,278 और आज़ाद कश्मीर में 813 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 28,855 नए टेस्ट किए गए और अब तक मुल्क भर में 67,892 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास के दौरान मुल्क भर में टारगेटेड स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद, एनसीसी के फैसलों, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की दरामद और तिब्बी आलात की जरूरियात के मामले का भी जायजा लिया गया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने मुल्क भर में कोरोना एसओपीज और स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद की सूरत हाल से आगाह किया है। वफाकी वजीर असद उमर ने तजवीज पेश की कि सूबाई हुकूमतें निजी कारपोरेशन और दफातर को नोटिफिकेशन जारी करें कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में मुकीम मुलाजमीन की ड्यूटी पर अदम हाजिरी पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो वबा का फैलाव रोकने के लिए इकदाम पर सख्ती से अमल करें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि पेशावर, मालाकंड, सबात, हरीपुर, नौशहरा और मर्दान के शहरी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इन इलाकों में 5 लाख अफराद मुकीम हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि सूबे के 8 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जिसकी जद में 10 लाख अफराद आए हैं। सिंध, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज ने भी स्मार्ट लॉकडाउन और एसओपीज के हवाले से आगाह किया है। दुनिया भर में अब तक 89,13,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,66,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 47,37,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 23,30,000 से ज्यादा है, जबकि 1,22,000 के करीब अफराद जान की बात से हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ब्राजील है, जहां 10,70,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि अमवात की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। रूस तीसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद तो 8,000, लेकिन मुतासरा अफराद की तादाद 5,76,000 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में भारत चौथे नंबर पर आ गया है, जहां 13,000 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि 4,11,000 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वाले 80% अफराद में इसकी मामूली अलामात ही दिखाई दी हैं, और ऐसे लोग जिनमें ये अलामात शिद्दत से पाई गई अकलियत में हैं। स्पेन में दाखिले के बाद बरतानवी सयाहों पर करंतना में रहने की पाबंदी नहीं होगी। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बरतानवी शहरियों को आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं और वो स्पेन में आज़ादाना घूम फिर सकते हैं। ऐसा उन 4 लाख बरतानवी शहरियों के लिए एहतरामन किया गया है जिनका स्पेन में दूसरा घर है, लेकिन अभी बरतानिया में नाफिज कवानीन के मुताबिक जो भी बरतानिया में वापस आएगा उसके लिए दोनों सूरतों में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। बरतानिया में करंतना की पाबंदियों पर नजरसानी 29 जून को होगी। बरतानवी हुक्काम ने खबरदार किया था कि लोग इंतहाई जरूरत पड़ने पर ही मुल्क से बाहर सफर करें। मशरकी लंदन के कस्बे रीडिंग में एक पार्क में चाकू बरदार शख्स के हमले से 3 अफराद हलाक, जबकि कई जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने जाए वकुआ से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जख्मी होने वाले कई अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक है। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक एक शख्स ग्रुप्स की सूरत में मौजूद लोगों के पास जा रहा था और उन पर चाकू के वार कर रहा था। बरतानवी हुकाम की जानिब से न तो जख्मी होने वालों और न ही हलाक होने वाले अफराद की तादाद के बारे में अभी तक कोई तस्दीक की गई। बढ़ेंगे एक बार फिर से कौमी खबरों की जानिब। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के पेश नजर PIA की चार्टर फ्लाइट अमेरिका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को 27 जून को मुल्क वापस लाएगी। अमेरिका से मखसूस परवाजों के सिलसिले की ये 7वीं परवाज होगी और परवाज न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू जर्सी से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। वो तमाम पाकिस्तानी इस परवाज के जरिए वतन वापस आ सकेंगे जिन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी और कौंसल खानों में रजिस्ट्रेशन करा रखी है। पाकिस्तान एम्बेसी के मुताबिक बाकी रह जाने वाले पाकिस्तानी भी फौरी तौर पर खुद को रजिस्टर्ड कराएं।
پاکستان نے تورخم اور چمن کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ہفتے میں 6 دن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا تجارتی راستہ غلام خان بھی کھولا جا رہا ہے تاکہ بیک لاگ ختم کیا جا سکے۔ فیصلے پر 22 جون سے عمل درآمد ہوگا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اس سلسلے میں ان کی افغان سفیر عاطف مشل سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر بات چیت ہوئی اور افغانستان کے راستے غیر قانونی درآمدات روکنے کے لیے مزید حفاظتی اقدامات پر زور دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے خیبر پاس اقتصادی راہداری کی تعمیر کی منظوری کے بعد مقامی تاجر اور عوام توقع کر رہے ہیں کہ اس سے نئی تجارتی راہداری سے علاقے میں ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ تفصیل جانیں گے حضرت عمر شنواری سے۔ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت نے عالمی بینک کے تعاون سے ایک نئے اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع کر رہی ہے۔ منصوبے میں پشاور سے تورخم سرحد تک 44 کلومیٹر 4 رویا ایکسپریس وے کے علاوہ ایک بڑے صنعتی زون کی تعمیر بھی شامل ہے۔ افتتاحی سروے کے بعد منصوبے پر 65 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تقریباً 7 دہائیوں تک ترقی سے محروم رہنے والی ضلع خیبر کے لوگوں کے لیے یہ منصوبہ ایک بڑے تحفے سے کم نہیں۔ انڈسٹری زون بنے گا جو شاکس اور باڑہ دونوں میں سے ایک جگہ کو سلیکٹ کیا جائے گا، وہاں پہ لوگ انڈسٹری لگائیں گے اور پھر یہاں سے کاروباری آمد و رفت کی ایزی ہوگا، اور خاص کر بارڈر کے لیے، افغانستان کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے یہاں پہ جو انڈسٹری لگے گا ان کے لیے نزدیک ترین ایریا ہوگا یہاں سے سامان پہنچانے میں۔ اس منصوبے سے پاکستان برآمدات کی وسطی ایشیائی ممالک کی منڈیوں تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی۔ راہداری کی تعمیر سے 1 لاکھ تک روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے خیبر اکنامک کوریڈور کا، اس سے تجارت بڑھے گی، خاص کر تاجروں کو بڑا فائدہ ہوگا، اس علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ پاس اکنامک کوریڈور سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا اور یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹر کا مسئلہ ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے، یہ بھی حل ہو جائے گا۔ خیبر پاس اکنامک کوریڈور منصوبہ 2024 میں مکمل ہوگا۔ اس کی تعمیر سے مقامی تاجروں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی معاشی زندگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ حضرت عمر شنواری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لنڈی کوتل۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ناظرین، ایشیائی ترقیاتی بینک سندھ میں شعبہ تعلیم اور کراچی ٹرانسپورٹ بس سروس کے لیے 35 کروڑ 90 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا، اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں سیکرٹری اقتصادیات امور ڈویژن اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ معاہدوں کے تحت ایشین بینک کراچی BRT کے ریڈ لائن منصوبے کے لیے 2 کروڑ 84 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ ADB نے 2 کروڑ 35 لاکھ ڈالر بطور قرض فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، جبکہ بینک گرین کلائمیٹ فنڈ منصوبے کے لیے 3 کروڑ 72 لاکھ ڈالر قرض اور 1 کروڑ 18 لاکھ ڈالر بطور گرانٹ بھی فراہم کرے گا۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج 67ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ 1988 میں اور دوسری مرتبہ 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی۔ انہیں 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے تاریخی مقام لیاقت باغ میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کے بعد اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ جلسہ ختم ہونے کے بعد واپس جا رہی تھی۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کے اظہار کے لیے دن منایا جا رہا ہے، اور یہ دن منانے کا مقصد باپ کی عظمت، عزت و وقار کا اعتراف اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہر سال جون کے تیسرے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ والد اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات محنت و مشقت کرتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس دن بچے بھی اپنے والد سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش کرتے ہیں۔ والد کے عالمی دن پر اس عزم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد سے غافل نہ رہنے والے شخص کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ باپ کے ساتھ حسن سلوک جہاد فی سبیل اللہ ہے تو باپ کی ناراضگی رب کائنات کی ناراضگی بھی ہے۔ ناظرین، آج 21 جون ہے اور آج دنیا بھر میں سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی، جس کے بعد دن کا دورانیہ بتدریج کم اور راتیں طویل ہونا شروع ہو جائیں گی۔
آج दिन का दौरानिया 14 से 15 घंटे होगा और कल 22 जून से दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है और 22 सितंबर को दिन और रात के दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाते हैं और इसके बाद रातों के दौरानिये में इजाफा और दिन का दौरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है, जबकि 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि 21 जून को जमीन का झुकाव सूरज की जानिब ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सूरज ज्यादा देर तक अपनी रोशनी बिखेरता रहेगा और इस दौरान मौसम गर्मा की शिद्दत भी बरकरार रहेगी, जबकि रात मुख्तसर तरीन होगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए, ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमद-ओ-रफ्त में एहतियात बरती जाए, ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से राबते में है। इस हवाले से चीन ने 4 करोड़ 90 लाख डॉलर की इमदाद की है। रावलपिंडी में सहाफ़ियों से बात करते हुए विफाकी वज़ीर ने कहा कि आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के हमले का खदशा है। लोकस्ट का अटैक तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया, पर बाय एंड लार्ज अंडर कंट्रोल है। ओवरऑल तखमीना लगाया है फाइनेंशियल, वो तकरीबन 25-26 अरब रुपए का है। इसमें तकरीबन 14 अरब जो होगा वो फेडरेशन की फंडिंग होगी और 12 अरब जो होगी वो चारों सूबों की फंडिंग होगी। 100 एंटोमोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है और उसके साथ ही 100 उनके साथ काम करेंगे लोग जो असिस्टेंट होंगे, और वो जैसे ही वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो मेरा ख्याल है काफी हद तक हमारी इंटरनल जो कैपेसिटी है वो अपग्रेड हो जाएगी। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी की मुहिम में 900 टीमें हिस्सा ले रही हैं और बलूचिस्तान में 26 अजला में 9,669 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें कौमी और सूबाई महकमों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन में बेहतर नेताज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के 6, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में टिड्डी दल तल्फी ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर शहर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को शहर के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया।
آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا، جبکہ شہر کے تمام علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ اسی دوران بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے سوپور اور بڈگام کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے سری نگر اور بارامولہ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے سری نگر کے علاقوں کلی کدل اور زونی مراکہ کا محاصرہ کیا اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ قابض فورسز نے ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے سوپور کے علاقے سید پورہ کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کی، جبکہ تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا۔ قابض حکام نے دونوں اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ ادھر سوپور میں بھارتی پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے افراد کی شناخت برت کلاں سوپور کے شبیر احمد میر اور محمد عباس میر اور تازو سوپور کے فہیم نبی بٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران بھارتی قابض افواج کی جانب سے 110 سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر دیا گیا۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 8 کشمیری نوجوانوں کو پلوامہ اور شوپیاں میں شہید کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بی جے پی حکومت قابض افواج کی جانب سے ان ہلاکتوں کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ عالمی قوانین ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان قوانین کا ذکر انسانی حقوق کے معاہدوں میں بھی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اس تمام تر صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لے۔ ناظرین، صوبے کے دور دراز کے علاقوں میں بہترین تعلیمی سہولیات کی بآسانی فراہمی یقینی بنانا پنجاب حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور اس سلسلے میں صوبے بھر میں 1227 ایلیمنٹری سکولز کو بغیر اخراجات اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا ہے اور اس سے ہزاروں طلباء اور طالبات کو فائدہ حاصل ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسی بارے میں نانکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد ماویہ۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ تعلیم نے ننکانہ صاحب اور اس کی تینوں تحصیلوں میں 18 ایلیمنٹری اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے انہیں ہائی اسکول کا درجہ دے دیا ہے۔ اپ گریڈ ہونے والے اسکولوں میں دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں قائم طالبات کے 12 اسکول بھی شامل ہیں۔ دور دراز جو دیہاتوں میں تھے ان کو ہم نے فوکس کیا اور پھر اسٹاف بھی وہاں پہ موجود ہے۔ وہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ لگائیں ہیں، وہ بچیاں اسکولوں میں آ رہی ہیں اور ایڈمیشن لے رہی ہیں۔ تعلیمی حلقوں، والدین اور طلباء نے سرکاری تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ایسے والدین کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں جو سفری مشکلات اور محدود وسائل کی وجہ سے مڈل کے بعد اپنے بچوں کو مزید تعلیم کے لیے کسی اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ موسٹلی جو والدین تھے اپنے بچوں کو یا کام پہ لگا دیتے یا گھر میں بٹھا لیتے تھے کہ ہم ان کا اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ ہائی اسکول بننے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ بچے یہاں پہ پڑھیں گے۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، ہمارے والدین کو بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ اسکول ہائی ہو گیا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے رکشے وغیرہ کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے اپ گریڈ ہونے والے تمام تعلیمی اداروں میں لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سائنس مضامین کے لیے تجربہ گاہیں بھی بنائی جائیں گی۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کورونا وبا سے محفوظ عید الاضحیٰ کے لیے SOPs کی تیاری کے لیے اسلام آباد میں علماء مشائخ کے ساتھ مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ اور ملک بھر سے نمائندہ علماء کرام اور مشائخ اعظام نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ اجلاس میں مویشی منڈیوں اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات کو محفوظ بنانے کے حوالے سے لائحہ عمل پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے آنے والی تجاویز کی روشنی میں قومی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ ناظرین، دنیا بھر میں آج موسیقی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد موسیقی کے ذریعے امن،
मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। वर्ल्ड म्यूजिक डे का आगाज 1981 में फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ। मौसीकी की रिवायत बरसगीर में बहुत पुरानी है और बरसगीर की क्लासिकल मौसीकी सुनने वालों पर मुख्तलिफ कैफियत तारी करती है। इसके अलावा गजल, गीत, फोक और प्लेबैक सिंगिंग वगैरह भी यहाँ के लोगों में इंतहाई मकबूल है। मौसीकी को कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा है और इसी मुनासिबत से दुनिया भर में सुरों का ये दिन मनाया जा रहा है। मौसीकी की उम्र जांचने का ना तो कोई पैमाना है, अलबत्ता हजारों साल पुराने आसार कदीमा से पत्थर के ऐसे आलात भी मिले हैं जिनकी मदद से मौसीकी बनाई जाती थी और जिनकी मदद से लोग अपने गमों और अपनी खुशियों का इजहार किया करते थे। बरसगीर में मौसीकी ने मुग़लिया दौर से बहुत पहले उरूज हासिल कर लिया था। अमीर खुसरो के बाद तानसेन और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिनमें मुख्तार बेगम और माजी करीब के सैकड़ों क्लासिकल गायक इस फन के अमीन बने। लाहौर आर्ट काउंसिल में 26वीं सालाना यंग आर्टिस्ट नुमाइश कामयाबी से जारी है, जिसमें मुल्क भर के नौजवान आर्टिस्ट के फनपारों को नुमाइश के लिए रखा गया है। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से वकास भट्टी। आर्ट और फनून लतीफ़ा की हौसला अफजाई जहाँ तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग देती है, वहाँ माशरे में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। इस सालाना नुमाइश का मकसद मुल्क के नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई करना और उन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मनवाने का मौका फराहम करना है। नुमाइश में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर से 400 जायद नौजवान आर्टिस्टों के फनपारे रखे गए हैं। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर इस नुमाइश को ऑनलाइन दिखाने का भी एहतमाम किया गया है। COVID-19 also given us an opportunity to reset, redirect and replace our position in the society, in the cultural landscape. नौजवान आर्टिस्टों के फनपारे देख के बाखूबी अंदाजा होता है कि वो तख्लीकी एतबार से किसी से पीछे नहीं। कहीं कुदरत के खूबसूरत रंगों को पेंटर्स ने बड़ी महारत के साथ कैनवस पर उतारा है, तो कहीं लाहौर की खूबसूरत शामों की अक्कासी की गई है, कहीं जिंदगी के मुख्तलिफ लम्हात को हमेशा के लिए महफूज किया गया है, तो कहीं तजरीदी आर्ट के जरिए किसी अनकही बात को बड़े राज के साथ पेश किया गया है। इस एग्जीबिशन का पर्पस हमारे पूरे मुल्क से जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके काम को डिस्प्ले करना है। तमाम SOPs के साथ ये एग्जीबिशन को हमने होल्ड किया है। नुमाइश के ऑनलाइन एहतमाम को न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया गया है और अब तक हजारों अफराद ऑनलाइन नुमाइश से मुस्तफीद हो चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान तमाम SOPs के साथ साथ यंग आर्टिस्ट नुमाइश का इनकाद माशरे में मुस्बत सोच को फरोग देने के साथ साथ नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई का भी बायस बनेगा। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। शहर कायद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की तकालीफ में मजीद इजाफा कर दिया। इसी बारे में तफसील बताएंगे जिशान अहमद खान। कराची में दर्जा हरारत 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। ताहम हवा में नमी के तनासुब 53% होने के बायस गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में मशरकी बहरा अरब में हवा के कम दबाव की वजह से समुद्री हवाओं में कमी वाक़ हो रही है, जिसके सबब गर्मी ज्यादा महसूस की जा रही है। से जो क्लाउड आते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन ये गर्मी का सिलसिला यानी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली दिन के औकात में रहा करेगा अगले चंद दिन ऐसे ही। गर्मी से बेहाल लोगों ने साहिल समंदर का रुख किया, जबकि ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गर्मी ऐसा है, घबराहट होता है, नींद भी नहीं है, सारा रात बिजली भी नहीं है। लाइटों का भी आजकल परेशानी शुरू हो गई है। अब एक टाइम जा रही थी, अब 2-2, 3-3 टाइम ले रहे हैं। 1 बजे लाइट जा रही है, 3 बजे आ रही है लाइट। क्या करें हम लोग, गरीब लोग कहाँ जाएं, परेशान है। घर में जाओ तो लाइट नहीं है, बाहर आओ तो काम हो नहीं रहा गर्मी की वजह से। धूप इतनी है, ना कुछ काम कर सकते ना कुछ, से बैठे रहते। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर अगले 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुशरफी मुर्तजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। 36 साला बांग्लादेशी क्रिकेटर ने गुज़श्ता हफ्ते अपना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटीना कर लिया है। मुशरफी मुर्तजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के रुकन भी हैं और इस वक्त ढाका में हैं। लॉकडाउन के दौरान मुशरफी मुर्तजा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। मुशरफी मुर्तजा के अलावा नफीस इकबाल और स्पिन बॉलर नजमुल हसन भी वायरस का शिकार हो गए हैं। मुशरफी मुर्तजा ने 36 टेस्ट, 220 वनडे और 7 T20 मैचेस में मुल्क की नुमाइंदगी की है। वो अब बैनुल अक़वामी सतह पर सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। श्रीलंका की हुकूमत ने 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल फिक्स होने के इल्जामात की तहकीकात का आगाज कर दिया है। श्रीलंका के सेक्रेटरी खेल ने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को फौरी तौर पर इल्जामात की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए हैं। तहकीकाती टीम साबिक वजीर खेल महिंदानंदा का बयान रिकॉर्ड करेगी। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने भारत और श्रीलंका के दरमियान ICC वर्ल्ड कप 2011 फाइनल के फिक्स्ड होने का दावा किया था। टीवी इंटरव्यू में महिंदानंदा ने इंकशाफ किया था कि श्रीलंका भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल जानबूझकर हारा था। श्रीलंका की अपोजिशन जमातों ने भी फिक्सिंग की तहकीकात की हिमायत कर दी है। और अब कुछ बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेसेस्टर सिटी और वॉटफोर्ड के दरमियान मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वॉटफोर्ड में खेले गए मैच जा रहे हैं। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से अगले 1 माह में 5 ऑनलाइन कोर्सेज मुनक्किद किए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले हालात ने फुटबॉल की सरगर्मियों को भी मुतासिर किया है। अलबत्ता मुल्क के कोचेज की बेहतरी के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ऑनलाइन कोर्सेज मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले का पहला कोर्स खवातीन के लिए रिफ्रेशर कोचिंग कोर्स होगा, जो 21 जून तक जारी रहेगा। 26 से 28 जून के दरमियान खवातीन के लिए तारुफी कोचिंग कोर्स मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान प्रीमियर फुटबॉल लीग और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लीग के कोचेज के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज 2 से 4 और 9 से 11 जुलाई के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि तारुफी कोचिंग कोर्स का इनेकाद 16 से 18 जुलाई के दरमियान किया जाएगा। और नाजरीन, ब्राजील के फुटबॉलर नेमार को देने पड़ गए हैं। पेरिस सेंट जर्मन और ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार अपने साबिका क्लब बार्सिलोना से 4 करोड़ 87 लाख अमरीकी डॉलर्स लेने गए, लेकिन इन्हें 75 लाख अमरीकी डॉलर्स अदा करने पड़ गए। नेमार ने स्पेनिश लीग चैंपियन बार्सिलोना के खिलाफ बोनस अदा किए जाने के हवाले से मुकदमा किया, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल न होने पर इन्हें क्लब को 75 लाख अमरीकी डॉलर से ज्यादा अदा करना पड़ेंगे। नेमार 2017 में पेरिस सेंट जर्मन के साथ रिकॉर्ड 41 अरब पाकिस्तानी रुपयों से जायद के मुआहदे पर बार्सिलोना क्लब छोड़ गए थे। ताहम ला लीगा क्लब को 1 साल पहले की अदायगियों के हवाले से अदालत भी ले गए। अदालत ने फुटबॉलर नेमार के दावे को मुकम्मल तौर पर खारिज करते हुए बार्सिलोना के हक में फैसला दिया। स्पेनिश क्लब ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट की वापसी ताखीर का शिकार हो गई है। 27 जुलाई को होने वाले 3 टीमों के मुनफरिद 36 ओवर्स के मैच को मुलतवी कर दिया गया है। 3 टीमों के दरमियान मुनफरिद मैच खिलाड़ियों को मैच फिटनेस फराहम करने और चैरिटी के लिए मुनक्किद किया जाना था। स्पोर्ट्स और सेहत के महकमों की जानिब से अभी तक इजाजत मौसूल न होने पर मुकाबला मुलतवी कर दिया गया है। बोर्ड के कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव जैक पॉल ने कहा है कि हमें खेल की सरगर्मियां फिर से शुरू करने के लिए हुकूमती इजाजत दरकार है। फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि सरगर्मियां कब तक शुरू होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब जानते हैं मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। ताहम बालाकोट में 2, कलाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो 47, नौकंडी और नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। समीना राना और अली जन्नत को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिएगा। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कोरोना को काबू करना आपके हाथ में है। 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदो खाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उर्माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें अकाए चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं शुभ सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत,
ہنستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے. یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان. اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے. آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں.